Hello, my dear psychology enthusiasts. I am Tanya and I welcome you all to my channel Psychic by Tanya. In the last session, we discussed about intelligence and its psychometric approaches. उसमें जो भी theories थी हमने सब पढ़ ली थी and also we discussed about the theory of multiple intelligences given by Howard Gardner. In today's session, we are going to start with the information processing approach to intelligence, where we are going to start with triarchic theory of intelligence. So, without any further delay, let's begin. Okay, so let us now proceed further with the chapter. Triarchic theory of intelligence. Robert Sternberg in 1985 proposed the triarchic theory of intelligence. Sternberg viewed intelligence as the ability to adapt, to shape and select environment to accomplish one's goal and those of one's society and culture. As we read earlier in the introduction of intelligence, Sternberg told us कि intelligence सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक इंसान environment में adapt करे. इंसान अपने environment को shape भी करता है according to his needs and modify भी करता है या alter करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने goals और अपने societal goals को accomplish कर पाए. According to this theory, there are three basic types of intelligence: componential, experiential and contextual. अब इनकी details हम लोग पढ़ेंगे. Componential intelligence. Componential or analytical intelligence is the analysis of information to solve problems. इनके जो second names हैं तीनों components के, they are very important and they come in MCQs. ठीक है, तो componential intelligence is also known as analytical intelligence, और जो हमारे स्कूल के टॉपर लोग होते हैं उसमें ये ज़्यादा ऐसे हाई होती है, केस स्टडी में आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि पीपल इंटरप्रेट कि क्या प्रॉब्लम है एंड उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विद दैट गिवन नॉलेज. पर्सन हाई ऑन दिस एबिलिटी थिंक एनालिटिकली एंड क्रिटिकली एंड सक्सीड इन स्कूल्स, एज आई टोल्ड यू. This intelligence has three components and this itself is again having three components, which are first is the knowledge acquisition component, जिससे हम चीज़ों को सीखते हैं, acquire करते हैं. ठीक है. The second is the meta और the higher order component, जिसमें हम plan करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या resources लगेंगे. And then third is the performance component, which actually involves to perform that thing या उसको actual उसमें लाना, purpose में लाना. ठीक है. देन एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, इसमें बेसिकली आपकी क्रिएटिविटी देखी जाती है. क्रिएटिविटी एज इन कि मान लो कोई ऐसी सिचुएशन तुम इनकाउंटर करते हो विच यू हैव ऑलरेडी फेल्ट बिफोर या तुम्हारे साथ पहले हुआ है. अब उस प्रॉब्लम को पहले कैसे डील करा था और अब जो नई थोड़ी सी रिलेटेड इशू आई है उसमें तुम कैसे उस इंफॉर्मेशन को या उस नॉलेज को यूज़ करके उसको सॉल्व करते हो. ठीक है, दिस इज़ वॉट एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस इज़ एज द नेम सजेस्ट, कि तुम्हारे एक्सपीरियंसेस से तुमने क्या सीखा एंड उसको नई प्रॉब्लम्स में तुमने कैसे यूज़ करा टू सॉल्व इट. इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन क्रिएटिव परफॉर्मेंस. Persons high on this aspect integrate different experiences in an original way to make new discoveries and inventions. पुरानी कुछ चीज़ थी उसमें हमने और हमारे एड-ऑन्स करके एक नई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला. ठीक है. दे क्विकली फाइंड आउट विच इन्फॉर्मेशन इज़ क्रूशियल इन अ गिवन सिचुएशन. ठीक है. देन नेक्स्ट इज़ कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस. इसमें जो लोग स्मार्ट होते हैं दे आर गुड इन बिजनेस एंड एडजस्ट करने में इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं. कॉन्टेक्चुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस. कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस को हम बोलते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्योंकि इसमें डे टू डे बेसिस पर जो हम एक्टिविटीज़ या इंसिडेंट्स इनकाउंटर करते हैं उनसे कैसे डील करना है ये इंक्लूड होता है. ठीक है. इट मे बी कॉल्ड स्ट्रीट स्मार्टनेस और बिजनेस सेंस. पर्सन हाई ऑन दिस एस्पेक्ट easily adapt to their present environment and select a more favorable environment than the existing one. पहले तो जो environment है उसको बेटर, जितना बेटर यूटिलाइज़ कर पाएंगे उसको करेंगे. ठीक है. देन जो एग्जिस्टिंग environment है उसको खुद के लिए और कैसे फेवरेबल बना सकते हैं उसमें मॉडिफिकेशंस करेंगे एंड मॉडिफिकेशन से पार नहीं पड़ती है तो अपना ही एक environment को शेप देंगे वो लोग. ठीक है. और मॉडिफाई द environment टू फिट देयर नीड्स. ठीक है. Therefore they turn out to be successful in life. उनको एडजस्ट करना भी आता है, सिलेक्ट करना भी आता है कि मेरे लिए क्या फेवरेबल है. ठीक है. एंड दे ऑल्सो नो कि मेरे को ये मॉडिफिकेशंस करने से बेटर आउटकम मिलेगा. मेरी रिक्वायरमेंट्स मुझे पता है एंड आई फंक्शन अकॉर्डिंगली. ठीक है. Sternberg's triarchic theory of intelligence represents the information processing approach to understand intelligence. ठीक है. Then next is the PASS model, which is planning, attention arousal and simultaneous successive model of intelligence. This was given by J.P. Das, Jack Naglieri and Kirby in 1994.
According to this model, intellectual activity involves the interdependent functioning of 3 neurological systems जिनको हम क्या बोलते हैं, the functional units of the brain. ये यूनिट्स क्या काम करने में हेल्प करती है? दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउजल और अटेंशन, कोडिंग और प्रोसेसिंग एंड प्लानिंग. इन 3 चीज़ों के लिए 3 आपके बेसिक यूनिट्स हैं एंड ये 3 फंक्शंस वो लोग परफॉर्म करते हैं. ठीक है. फर्स्ट फंक्शन इज अराउजल और अटेंशन. स्टेट ऑफ अराउजल क्या होता है? इट हेल्प्स अस टू अटेंड टू एन स्टिमुलाई. ठीक है. जैसे मान लो मेरे इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आता है तो मैं वो सेंस तो करूँ पहले टू फंक्शन अकॉर्डिंगली या टू एक्ट अकॉर्डिंगली. ठीक है. और वो उसमें कौन हेल्प करता है? जब मैं अराउजल के स्टेट में होंगी तब आई बी एबल टू नोटिस दैट. State of arousal is basic to any behavior as it helps us in attending to stimuli. Arousal and attention enable a person to process information. पहले मैं arouse होंगी उस चीज़ से कि अच्छा ये चेंज हो रहा है या मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है. Then I'll attend to it closely कि हाँ मुझे इस चीज़ पर फोकस करना है. ठीक है. An optimal level of arousal focuses our attention to the relevant aspects of a problem. Too much or too little arousal would interfere with attention. अगर मैं arousal level पर आ ही नहीं पा रही, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा किसी stimuli से, again I will not be able to attend to it. एंड कुछ ज़्यादा ही arousal के स्टेट में हो तो मेरे को बहुत सारी चीज़ों पर अटेंशन मेरा शिफ्ट होता रहेगा एंड मैं कोई पर्टिकुलर चीज़ पर फंक्शन नहीं कर पाऊँगी. ठीक है. For instance, when you are told by your teacher about a test which she or he plans to hold, it would arouse you to attend to the specific chapters. Arousal forces you to focus your attention on reading, learning and revising the contents of the chapter. ठीक है. अब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि मेरा टेस्ट होने वाला है, मेरे को अराउजल आया जब मैं एक ऑप्टिमल लेवल पर थी. ठीक है. देन आई अटेंडेड टू इट कि मेरे को क्या क्या स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड है टू स्कोर वेल इन दैट एग्ज़ाम. ठीक है. Next is simultaneous and successive processing. You can integrate the information into your knowledge system either simultaneously or successively. ये दोनों alternatively चलते हैं, कोई ना कोई एक आपको help करेगा to code या process the information. Simultaneous processing takes place when you perceive the relations among various concepts and integrate them into a meaningful pattern. कि मैंने 2 चीज़ें हैं मेरे पास, अब मैं उसमें relation ढूंढ रही हूँ कि how are they रिलेटेड टू ईच अदर, हाउ आर दे सिमिलर. ठीक है. कुछ ना कुछ ऐसा मैं ढूंढ रही हूँ एंड देन आई एम मेकिंग अ मीनिंग आउट ऑफ इट. कुछ एक मीनिंगफुल पैटर्न बन रहा है. जैसे हमारे RPM टेस्ट होते हैं. ठीक है. उसमें क्या होता है, यू आर गिवन अ पर्टिकुलर डिज़ाइन एंड उसमें से एक ब्लॉक आपका मिसिंग होता है. देन यू आर गिवन 6 ऑप्शंस एंड यू नीड टू चूज़ कि उनमें से कौन सा ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर जो फिट हो रहा है प्रॉपर्ली उस पैटर्न में. तो ये क्या है आपकी, ये साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग है कि यू आर फर्स्ट परसीविंग द रिलेशंस एंड देन यू आर एक्टिंग ऑन इट एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये पैटर्न इससे बन रहा है. ठीक है. देन इट इज़ साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग हेल्प्स यू इन ग्रास्पिंग द मीनिंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन द एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स. ठीक है. जो भी आपको नॉर्मल से चीज़ें दे रखी है उसमें रिलेशंस फाइंड करने में हेल्प करेगा एंड उससे एक मीनिंग डिराइव करने में हेल्प करेगा. ठीक है. सक्सेसिव प्रोसेसिंग क्या होती है, जैसे हम टेबल्स लर्न करते हैं, जैसे हम अल्फ़ाबेट्स लर्न करते हैं, हम डिजिट्स लर्न करते हैं कि 1 2 3 आगे 4 आएगा मेरे उसमें है, ये मेरी सक्सेसिवली मुझे एक के बाद एक याद आएगा. टेबल्स में बचपन में क्या होता था, 2 की टेबल बोल रहे हैं 5 तक याद है, लेकिन आगे जब 6 की बोलोगे तो उससे आगे और याद आ जाती है. यही होता है, एक वर्ड बता दो वाला सीन. ठीक है. तो दिस इज़ व्हाट सक्सेसिव प्रोसेसिंग इज़. सक्सेसिव प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस व्हेन यू रिमेंबर ऑल द इंफॉर्मेशन सीरियली सो दैट द रिकॉल ऑफ वन लीड्स टू द रिकॉल ऑफ अनदर. कि मैं कोई एक चीज़ बोल रही हूँ उससे मुझे आगे के इंसिडेंट्स या आगे की जो चीज़ें हैं वो भी याद आते जा रही है. ठीक है. जैसे हमारी जो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स होती थी, अल्फ़ाबेट्स होते थे, डिजिट्स होते थे, ये हम सक्सेसिव प्रोसेसिंग से लर्न करते थे, हमारे दिमाग में कोड करते थे. ठीक है. नाउ द लास्ट वन इज़ प्लानिंग. दिस इज़ एन एसेंशियल फीचर ऑफ इंटेलिजेंस. आफ्टर द इंफॉर्मेशन इज़ अटेंडेड टू, पहले अराउज हो गए, उसको हमने अटेंड कर लिया, देन हमने उसकी प्रोसेसिंग कर ली. नाउ व्हाट वी विल डू, हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, हमने उसको समझ लिया, गैदर कर लिया. नाउ वी नीड टू फंक्शन अकॉर्डिंगली. It allows us to think of the possible courses of action to implement them to reach to a target and evaluate their effectiveness. कि कौन सा मेथड कितना इम्पॉर्टेंट या कितना सही है मेरे काम के अकॉर्डिंग. ठीक है. इफ़ अ प्लान डज नॉट वर्क, आपको उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा टू सूट टू योर रिक्वायरमेंट्स, और अगर वर्क कर जाता है तो वेल एंड गुड.
फॉर एग्जाम्पल, टू टेक द टेस्ट शेड्यूल बाय योर टीचर, यू वुड हैव टू सेट गोल्स कि मैं ऐसे ऐसे इस टाइम पर पढ़ूंगी, इस टाइम पर ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ऐसे ऐसे सीरियली मैं इन चैप्टर्स को लर्न करने वाली हूँ, आई एम फर्स्ट गोइंग टू रीड, देन आई विल बी लर्निंग इट, ऐसा करके, ठीक है। तो ये मैंने मेरी पूरी प्लानिंग कर ली। हो सकता है इससे मुझे सब कुछ याद हो जाए, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हो गया मेरा प्रिपरेशन। लेकिन व्हाट इफ़ इतना सब करने के बाद भी आई फील कि नहीं यार, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं हो रहा, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर मैं कुछ और ऑल्टरनेट देखूंगी कि मैम से एक बार वापस से समझ लूँ टेस्ट से पहले, या मेरी कोई फ्रेंड मुझे समझा दे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, देन वी सी अदर पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन जो हमको प्लानिंग हेल्प करता है करने में, ठीक है। द पास्ट प्रोसेसेस ऑपरेट ऑन अ नॉलेज बेस डेवलप्ड आइदर फॉर्मली, ठीक है, कैसे, रीडिंग, राइटिंग और एक्सपेरिमेंटेशन से, और इनफॉर्मली फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है। These processes are interactive and dynamic in nature, yet each has their own distinctive functions, ठीक है। जो भी हमने प्रोसेसेस पढ़े तीन, अराउजल, अटेंशन और आपका प्रोसेसिंग एंड प्लानिंग, ये इंटरैक्टिव हैं। एक चीज़ होगी तभी दूसरा हो पाएगा, एंड दे आर रिलेटेड, ठीक है। लेकिन उनका खुद का भी जो सेपरेटली देखोगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है, वो खुद में ही एक डिस्टिंक्टिव फंक्शन है, ठीक है। Das and Nagliri have also developed a battery of tests called the CAS, Cognitive Assessment System. It consists of a verbal as well as non-verbal tasks that measure basic cognitive functions presumed to be independent of schooling. कि एक बच्चा अगर 6 साल का है तो इतना तो उसको आना ही चाहिए, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं, बट नॉर्मल डे टू डे फंक्शंस उसको इतना तो आना ही चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। द बैटरी ऑफ टेस्ट इज़ मेंट टू फॉर इंडिविजुअल्स बिटवीन 5 and 18 years ऑफ एज, ठीक है। 5 से 18 साल के बच्चों को इसके थ्रू टेस्ट कर सकते हैं। इसका जो रिज़ल्ट आएगा, इट विल टेल यू कि कितना आपका फंक्शनिंग है कॉग्निटिव, और उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज़ भी ये सजेस्ट करता है, क्या आपको रेमेडी लगेगी टू गेट बेटर, ठीक है। दिस मॉडल रिप्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, ठीक है। हमने दो पढ़ लिए, एक आपका ट्रायर्किक मॉडल हो गया और एक पास मॉडल हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। सब लोग एक दूसरे से अलग हैं अपनी इंटेलेक्चुअल लेवल में, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है। अब इसमें क्या रोल प्ले हो रहा है, क्या बायोलॉजिकल फैक्टर्स का रोल है, या हमारे सराउंडिंग्स, हमें कैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा गया, हम प्रिविलेज थे या डिसएडवांटेज थे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो इसका एक बहुत अच्छा खासा कॉन्फ्लिक्ट चलता है, कोई साइकोलॉजिस्ट कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, बट दोनों का ही काफ़ी अच्छा रोल होता है टू डिटरमाइन इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन, ठीक है। इंटेलिजेंस, इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर। नेचर आपका बायोलॉजिकल यानी हेरिडिटरी कंपोनेंट है, एंड नर्चर इज़ योर इन्वायरमेंट, योर सराउंडिंग्स, कि आपको कैसा फैसिलिटीज़ मिली है, ठीक है। द एविडेंस फॉर हेरिडिटरी इन्फ्लुएंसेस ऑन इंटेलिजेंसेस कम मेनली फ्रॉम द स्टडीज़ ऑन ट्विन्स एंड अडॉप्टेड चिल्ड्रन। अब इसको पढ़ने के लिए, मतलब याद करने के लिए बेसिकली ये क्वेश्चन आ जाता है, एंड इसमें स्कोर अच्छा लाने के लिए यू शुड मेक अ टेबल तुम्हारे पास, ठीक है। अब उस टेबल में क्या करना, यहाँ लिखना पीपल, या जैसा भी तुम्हारा क्लासिफिकेशन है कि आइडेंटिकल ट्विन्स रियर्ड टुगेदर, आइडेंटिकल ट्विन्स रियर्ड अपार्ट टाइप्स, एंड यहाँ पर उनकी आप वो लिखना कितनी कोरिलेशन है, ठीक है। उस हिसाब से यू विल लर्न, एंड आपको यही टेबल एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो भी बनाकर आनी है। इट इज़ टाइम सेविंग, आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, बस टॉपिक में आपका कैटेगरी लिखी एंड आपका कोरिलेशन लिखा, इट विल बी वेरी इजी, ठीक है। द इंटेलिजेंस ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स रियर्ड टुगेदर कोरिलेट ऑलमोस्ट 0.90%। पहले तो बायोलॉजिकली पूरे सेम, देन आपका एनवायरनमेंट भी सेम है, आप साथ में पले बड़े हो, तो आपके बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होने के चांसेस हैं, 0.9 आपका कोरिलेशन पॉसिबल है। Twins separated early in childhood also show considerable similarity in their intellectual abilities, and सारी मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी काफ़ी हद तक सेम होती है अगर अपार्ट रियर हुए हो तो भी, ठीक है। द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स रियर्ड इन डिफरेंट एनवायरमेंट कोरिलेट टू अबाउट 0.72, ओके। दोज ऑफ फ्रेटर्नल ट्विन्स रियर्ड टुगेदर, ठीक है, उनकी होती है 0.60, दोज ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रियर्ड टुगेदर 0.50, एंड सिबलिंग्स रियर्ड अपार्ट दे आर 0.25, ठीक है। अनदर लाइन ऑफ एविडेंस कम्स फ्रॉम द स्टडीज़ ऑफ अडॉप्टेड चिल्ड्रन। ये तो हमने ट्विन्स की स्टडी का देख लिया कि ट्विन्स या सिबलिंग्स वाला। अब अडॉप्टेड और बायोलॉजिकल, अब जब अ पर्सन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न तो उसके ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं, बट एज़ द टाइम पासेस, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा आइडेंटिकल हो जाते हैं अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स के, और कैसा इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड हुआ है उससे, ठीक है।
Children from disadvantaged homes adopted into families with higher socioeconomic status exhibit a large increase in their intelligence scores. एक बच्चा जो बायोलॉजिकली डिसएडवांटेज फैमिली को बिलोंग करता था, लेकिन अगर उसको बेटर इन्वायरमेंट, बेटर स्टडी ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज़ बेटर प्रोवाइड करी जाए तो उसके इंटेलिजेंस लेवल में एक बहुत हद तक इंक्रीज़ देखा जा सकता है. There is a evidence that environmental deprivation lowers intelligence, while rich nutrition, good family background, and quality schooling increases intelligence. There is a general consensus among psychologists that intelligence is a product of complex interaction of heredity, which is nature, and environment, which is nurture. Heredity can be best viewed as something that sets a range within which an individual's development is actually shaped by the support एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द इन्वायरमेंट. ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हेरिडिटी आप ऐसा देख सकते हो कि बायोलॉजिकली एक रेंज सेट कर दी कि इतना ये बढ़ सकता है. नाउ इन्वायरमेंट विल प्ले अ रोल कि इस रेंज में कितना बेटर डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल. ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस. In 1905, Alfred Binet and Theodore Simon made the first successful attempt to formally measure intelligence. In 1908, when the scale was revised, they gave the concept of mental age, which is actually a measure of a person's intellectual development related to the people of her or his age group. ठीक है, सबसे पहले तो आपके एल्फ्रेड बिने जो फादर ऑफ इंटेलिजेंस हैं उन्होंने और थियोडोर साइमन ने मिलकर एक स्केल बनाई टू मेजर इंटेलिजेंस. ठीक है, ये होने के बाद उस स्केल को थोड़े ईयर्स बाद रिवाइज़ करा गया और उसमें कॉन्सेप्ट दिया गया मेंटल एज का. मेंटल एज क्या होती है कि मेरे एज ग्रुप, मान लो मैं 18 की हूँ, तो मेरे 18 ईयर्स वाले एज ग्रुप में नॉर्मली लोगों की क्या इंटेलिजेंस लेवल है. अगर आई एम मैचिंग इट तो नॉर्मल है, अगर मैं एक्सीड कर रही हूँ तो गिफ्टेड में जाएगा, और अगर मैं उससे भी बिलो फंक्शन कर रही हूँ देन इट इज़ व्हाट आपकी डेफिशिएंसी. ठीक है, तो a mental age of 5 means that a child's performance on an intelligence test equals average performance level of a group of 5-year-old. कि 5 साल के बच्चों में जितनी इंटेलिजेंस लेवल है उतनी उस बच्चे की भी इंटेलिजेंस लेवल है. क्रोनोलॉजिकल एज आपकी बायोलॉजिकल एज होती है जो बर्थ से कैलकुलेट करते हैं. अ ब्राइट चाइल्ड्स MA इज़ मोर देन हर और हिज CA, यानी कि मेंटल एज ज़्यादा होगी क्रोनोलॉजिकल एज से, वो बेटर फंक्शन कर रहा है अपने एज ग्रुप के बच्चों से. ठीक है, फॉर अ डल चाइल्ड वो बिलो होगी. Simon, retardation was defined by Binet and Simon as being 2 mental age below the chronological age. अगर कोई 16 साल का बच्चा 14 साल के लेवल पर या 14 साल के एज ग्रुप वाले बच्चों की तरह फंक्शन कर रहा है then they termed it as what? Retardation. In 1912 फाइनली विलियम स्टर्न आए. उन्होंने, वो क्या थे, जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने IQ का कॉन्सेप्ट हमको दिया. IQ टेस्ट अभी भी होते हैं. ठीक है, IQ refers to mental age divided by the chronological age and multiplied by 100. 100 सिर्फ इसलिए ताकि जो डेसिमल्स है वो रिमूव हो जाए. ठीक है, व्हेन द MA इक्वल्स CA, यानी जितना आपका एज ग्रुप है, 18 साल का बच्चा 18 साल के लेवल पे फंक्शन कर रहा है, ओके. ठीक है, आपका मेंटल एज आपका 1 आ जाएगा. ठीक है, 100 आ जाएगा बेसिकली. इफ़ MA इज़ मोर देन CA तो 100 से ज़्यादा, और अगर MA इज़ बिलो CA तो आपका 100 से कम आएगा. For example, a 10-year-old child with a mental age of 12 would have an IQ of 120, whereas the same child with an MA of 7 would have an IQ of 70. इसको आप डिवाइस करके, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, MCQs भी आ सकते हैं, और नॉर्मल अब जब को आप IQ के बारे में पूछा जाए तो यू शुड गिव एन एग्जाम्पल और ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है, अब नेक्स्ट वील बी रीडिंग अबाउट NPC, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जो ये वाला डायग्राम है. ठीक है, इसके थ्रू हमने कैसे लोगों को डिफ्रेंशिएट करा है बेस्ड ऑन देयर इंटेलिजेंस लेवल्स, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. ओके, टिल देन सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियोस. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.